This is episode 13 of Little Fixes podcast. Can you help me in making this podcast reach more people who might find it valuable? अगर आपको इस पॉडकास्ट का एक भी एपिसोड यूजफुल लगा है तो प्लीज़ उसके बारे में अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताइए। यहाँ इतनी वैरायटी है कि सबको कुछ ना कुछ अच्छा लग सकता है। बहुत सारे नए एपिसोड्स भी आ रहे हैं। I put in a lot of effort in producing each episode, and my guests give their time and so much valuable information. आपको नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? अगर लगता है तो प्लीज़ टेल अदर्स अबाउट लिटिल फिक्सेस। थैंक यू सो मच। और अब आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जिसमें आई विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग विद नम्रता राका। शी इज़ अ हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट टीचर. Good handwriting has way more benefits than just getting good marks. Keep listening to know what they are and how you can help your kids in improving their handwriting. Welcome to Little Fixes podcast. Raw, real, and super fun chats with wonderful people. We discuss valuable ideas and provide guidance to enrich your life. Join us for relatable stories and practical tips for personal development. चाहे वो आपका करियर हो या फिटनेस, सोशल मीडिया ग्रोथ, फैमिली, सेल्फ केयर और भी बहुत कुछ. This is Matri, celebrity stalker and your host. Hello Namrata, welcome to the show. Hi Maitri. Thank you so much. Namrata here is a handwriting expert. She teaches how to improve your handwriting, and now I'll let her introduce herself. Okay, so as Maitri introduced me, I'm an handwriting expert. Um, I have more than 6 years of experience in this field, and I've developed this program. I've designed this program from all my experiences and my studies and research I've done on this. So basically, in this program, I use uh, it's a scientific techniques that I use to diagnose the problem and as well to solve the handwriting problems if the child is facing and improvise on their handwriting. Interesting, because I have heard about handwriting analysis, but never thought कि ऐसे करके हम handwriting improve भी कर सकते हैं. नहीं तो मैंने Yes, बहुत पहले कर ली actually. होती अपनी improve. हाँ, definitely. I have Right. very very bad handwriting. नहीं एक्चुअली पहले मेरी भी थी बट after realizing ki how handwriting is important and how it plays an important role in our life and seeing some kids suffering actually is really motivated me to work towards it. कि आई रिमेम्बर मैंने बचपन में कोई बुक में महात्मा गांधी का पढ़ा था कि यू हैव टू हैव अ गुड हैंड राइटिंग. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट वर्ड्स, बट ही ऑलवेज felt sad कि उनकी handwriting बहुत बेकार थी, तो he emphasized this in some way. I don't remember. Yes, it's a say also from Mahatma Gandhi which says that bad handwriting is equivalent to imperfect education, something like that it goes. I hope my handwriting is not that bad then. No, we don't. Not everyone has that bad handwriting. I believe that. Definitely, I hope so. Okay, so There what is a is scope of improvement. That's why I'm here. yes, definitely there is always scope for improvement. Right. So what is handwriting improvement? जब हम लोग handwriting improvement की बात करते हैं तो it's Mhm, we mostly think about कि हमें handwriting देखने में सुंदर सुंदर लगे. When I was a kid, तो मुझे mhm. mostly अपनी notebook में लिखकर मिल जाता था improve handwriting या लेख सुधारो. Right. तो Mhm. handwriting improvement is just about making it look beautiful, or is it more than that? Yeah, I will always tell from my perception. So, if I see from my side and the way I'm teaching the kids, what I see there is a difference between a creative handwriting and a difference between your own handwriting. Okay, so when we talk about the creative handwriting, I can give you an example. जब हम birthday cards वगैरह बनाते हैं, how we decorate our letters. So that's what beautiful writing we can call. But when we talk about what is handwriting is our own style of writing. Actually ये एक habit बन जाती है, subconscious activity है ये जो habit में turn होती है हमारी. तो ये जैसे जैसे हम grow होते हैं, हमारे अंदर जो experiences होती हैं, जो हमारा मूड होता है, उसके बेसिस पे आप लेटर्स
फॉर्म करते हैं, जो आपने हैंडराइटिंग, जैसे आप कह रहे हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस में भी आपने पढ़ा होगा। हम्म। और काफी बार हम लोग ये सुनते भी हैं कि हम पर्सनालिटी रीड कर सकते हैं। यस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा सिग्नेचर्स। ओके। जैसे कि जो लीगल हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट किसी दो पर्सन के सेम नहीं हो सकते, वैसे ही सिग्नेचर भी एक कितनी इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल बात है हमारी हैंडराइटिंग की, कि कोई भी दो पर्सन की सिग्नेचर सेम नहीं होते हैं, और इसको एक लीगल प्रूफ माना गया है। तो ये इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। बट जो लोग हैंड राइटिंग फोर्ज कर लेते हैं, लाइक सिग्नेचर फोर्ज कर लेते हैं यार, वो तो नेक्स्ट लेवल एक्सपर्ट होते वो होंगे। वो दैट्स, आई थिंक, मुझे लगता है कि ये एक ब्रांच भी है फॉरेंसिक ब्रांच में, मतलब हैंडराइटिंग को आप एनालाइज अच्छा। कर सकते हो। हम्म। अगर वो फॉर्ज भी किया हुआ है ना, तो हम्म। हैंडराइटिंग एनालिसिस उसको पकड़ सकते हैं। मतलब फिर तो काफी डिफरेंट होता होगा। हाँ, हाँ, अभी हम सब ले हैं अभी, तो मैंने भी अभी एक्चुअली हैंडराइटिंग एनालिसिस पे इतना वर्क नहीं किया। आई एम स्टडिंग ऑन इट मोर, हम्म। बट जितना मैंने पढ़ा है उसके बारे में, हम्म। तो आई एम रियली फैसिनेटेड अबाउट दिस थिंग। हाँ, जैसे हमें कोई नई नोटबुक, नई सुंदर सी डायरी मिलती है, वी राइट वेरी ब्यूटीफुली इन द फर्स्ट फ्यू पेजेस, उसके बाद वही शुरू हो राइट। जाता है। बिल्कुल। तो हाँ, हम हाँ। जैसे एग्जाम में भी लिखते हैं, तो हम्म। फर्स्ट फ्यू पेजेस में हम कितने ब्यूटीफुली लिखते हैं, फिर बाद में तो बस हमारे थॉट्स जो जो आता है वो सब लिख देते हैं। और फिर हैंडराइटिंग की तो हम इतना सोच ही नहीं पाते। हाँ, नहीं सोच पाते। ओके। इस वक्त तो हमारे पेपर को कंप्लीट करने का जो प्रेशर होता है कि नहीं, फटाफट लिखो। हाँ, फिर वो अपनी जो रियल रियल हैंड राइटिंग होती है वो सामने आ रियल जाती है। हैंडराइटिंग आ जाती है। सो मतलब ये है तो कि बस ये हैंड, इतना ही हाँ। डिफरेंस है फर्स्ट पेज और लास्ट पेज में, जो डिफरेंस होता है हमारी हैंडराइटिंग में, हाँ हाँ। लेजिबिलिटी एंड इलेजिबिलिटी, बस यही डिफरेंस है। सो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब अगर आप लेजिबल लिख रहे हो तो यू आर इम्प्रूविंग योर हैंड राइटिंग, इलेजिबल है यस, तो मतलब वही है यू जो नीड एन आपने नहीं किया इम्प्रूवमेंट। है, आपको करना पड़ेगा। जी, ओके। जी, ओके। जी। ओके। सो अब हमें ये पता चल गया कि हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट क्या होता है। तो इसके बेनिफिट्स भी होते हैं ऑब्वियसली, कि हमें अच्छे अच्छे मार्क्स बिल्कुल। मिल जाते हैं एग्जाम में। उसके सिवा और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अच्छी हैंड राइटिंग के? जी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसके मैंने जैसे कि बताया था कि साइंटिफिक टेक्निक है, हम्म। किस तरह से हम उसको इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा सा मैं बहुत ही बेसिक से साइंस में थोड़ा सा जाऊंगी, ताकि मैं उसको, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूं, बेनिफिट्स को। हम्म। तो जब हम हैंड राइटिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चा रिकॉग्नाइज करता है लेटर को। हाँ। सिंपल सी चीज है, बच्चा रिकॉग्नाइज कर लेटर, वो हम्म। आपके ब्रेन में मैसेज जा रहा है, फिर आपके वो ब्रेन जो है वो आपके हैंड को मैसेज देता है कि आपको लिखना है। हम्म। ओके। तो वो जब हम लिखते हैं, जो सिग्नल हमें हाथ से मिल रहा है, हैंड मसल्स देन डू द राइटिंग। हम्म। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो होता है आपके स्ट्रॉन्ग हैंड और फिंगर मसल्स, और दूसरा होता है आपकी एबिलिटी ऑफ द आईज टू वर्क टुगेदर विद द हैंड, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। और यस। जो हमारी फाइन मोटर स्किल्स है, जो हम डेवलप करना चाहते हैं, तो ये दो चीज़ों पे वर्क होता है। तो जब हम हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो हम इन दो चीज़ों पे वर्क करते हैं। सो हैंडराइटिंग के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स एक्शंस होते हैं, जो मसल्स और ब्रेन, और मतलब हैंड मसल्स, आई मसल्स और ब्रेन को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो जब हम हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, खासकर बच्चों के अंदर, तो हमने जो इलेजिबिलिटी देखी है वो इसलिए देखी है क्योंकि उनके हैंड मसल्स बहुत ही जल्दी, हम लिखने के लिए उनको स्ट्रेस डाला जा रहा है, या हैंड मसल्स टायर्ड हैं या डेवलप्ड नहीं हुए हैं। तो जब हम इन चीज़ों पे, स्पेशली मैं जब हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट पे वर्क करती हूँ बच्चों के, तो सबसे पहले ये चीज़ देखती हूँ कि वो किस तरह से पेंसिल की ग्रिप पकड़ के रख रहे हैं, और उनका जो आई का जो एंगल है, वो क्या, वो जहाँ वो लिख रहे हैं वो प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आपकी बुक के अलाइनमेंट, आपका प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए, ताकि आपकी पेन फ्री राइटिंग हो। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द हैंड राइटिंग प्रोग्राम, कि आपकी ओवरऑल, नॉट ओनली, इट्स नॉट, it does not start with just correcting your letters. It starts with your physic, कि आपका पेन फ्री एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप टायर्ड हो, आप अगर स्ट्रेस्ड हो, आप लिखना नहीं चाह रहे हो, जो कि बच्चों में काफी बार देखा जाता है कि वो लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसे रिमार्क्स मिले हुए हैं कि अब वो घबराते हैं लिखने से। ऐसे बच्चे भी आते हैं मेरे पास में कि उनको नहीं लिखना होता है।
तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए वी वर्क ऑन देयर मोटर स्किल्स, वी डू सम ड्राइंग्स, वी डू पैटर्न एक्सरसाइजेस, ये हैंड मसल्स के को स्ट्रेंथन करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट विद द लेटर फॉर्मेशन, then we want to complete first so that we can work on it. Now coming to the benefits, when we do this, the benefit of this is that उनकी पेंसिल की जो ग्रिप है उसको प्रॉपरली डेवलप करते हैं हम हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट में. तो जब आपकी पेंसिल ग्रिप प्रॉपर होगी, देन योर लेटर्स विल फॉर्म करेक्टली. और क्या होता है कि जब लेटर्स अगर आपके करेक्टली फॉर्म होते हैं तो आपका विजुअल परसेप्शन जो बोला जाता है, एक टेक्निकल टर्म होता है इसके लिए, कि आपका जो विजुअल परसेप्शन है, जो आप लेटर्स को जिस तरीके से देखते हो वो चेंज होता है. इसको मैं थोड़ा सा सिंपल में ये इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि हम जब हम छोटे थे तो हमें जिस तरह से लेटर्स को हमने परसीव किया वो हमारा स्टाइल बन गया. बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सपोज हम कैपिटल ए की बात करें तो कोई पॉइंट लेफ्ट साइड से ऊपर लेके जाता है फ्रॉम डाउन टू अप एंड देन अप टू डाउन, या फिर कोई ऊपर से ही शुरू करेगा, दे विल मेक टू डिफरेंट स्ट्रोक्स पेंसिल को उठा के ऊपर से नीचे, फिर वापस ऊपर जाके फिर ऊपर से नीचे. तो ये कैपिटल ए को देखने का दो नजरिया मैंने बताया है. तो इसी तरीके से हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है. तो अगर हम उनको प्रॉपर लेटर के स्ट्रोक्स अगर हम बताएं और तो उससे क्या होगा कि उनको प्रॉपर वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे लेटर्स को, उनका परसेप्शन जो होगा वो चेंज होगा टुवर्ड्स राइटिंग, उनका पेन फ्री हैंड राइटिंग होगी, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है राइटिंग की तरफ, लर्निंग की तरफ, और उनकी एक बेटर एजुकेशन की तरफ. जैसे कि आप बता रहे थे, हम बात कर रहे थे, महात्मा गांधी ने बोला है. तो यही यही वजह है कि एजुकेशन इज लिंक्ड टुवर्ड्स हैंड राइटिंग. अगर आप सही लिख रहे हो तो आप सही परसीव कर रहे हो लेटर्स को, और आप सही परसीव कर रहे हो तो आपकी लेटर जो आपकी लर्निंग है वो बेटर हो रही है. ओके, मतलब स्ट्रोक सही से बनाने का भी कोई तरीका होता है, हर लेटर को फॉर्म करने का एक तरीका होता है. लाइक कुछ लोग ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं या नीचे से ऊपर या कुछ और, तो मतलब जी उसका भी कोई सही तरीका जी होता है. लाइक माय हस्बैंड वाज आस्किंग मी अभी जी कि बिल्कुल, मैंने उनसे बताया वो तरीके पे ही वर्क किया जाता है जब अच्छा हम इम्प्रूव करते हैं. जी अभी जब मैंने उन्हें बताया कि आई एम गोइंग टू स्पीक टू अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, तो ही सेड कि उनसे ये पूछना कि स्ट्रोक्स ऊपर से नीचे जाने चाहिए कि नीचे से ऊपर जाने चाहिए. जी नहीं, एक्चुअली ऐसा हर एक लेटर का अलग रूल है, और हर लेटर के लिए हम लोग अलग स्टेप्स हमने बना के रखे हैं ताकि बच्चे को याद रहे कि अगर ए लिखना है तो वो कैसे लिखना है, कर्सिव में लिखना है तो कैसे लिखना है. तो सभी लेटर्स के अलग स्ट्रोक्स हैं. कुछ लेटर्स जैसे एल है वो ऊपर से नीचे आएगा, और क्योंकि हर लेटर अलग अलग जोन में बनाए जाते हैं तो सभी लेटर्स के अलग स्ट्रोक्स है. कुछ 1 स्ट्रोक में बनते हैं लेटर्स, कुछ 2 स्ट्रोक्स में, और कुछ 3 स्ट्रोक्स में भी बनते हैं लेटर्स. कोई पर्टिकुलर स्ट्रोक नहीं होता. हिंदी में जरूर ये होता है कि आपको लेफ्ट से राइट लिखना है. सभी लेटर्स को मोस्टली आप लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेफ्ट से राइट में स्ट्रोक्स जाने चाहिए आपके. इंग्लिश में ऐसा कोई रूल नहीं है. तो फिर बच्चों को इतना सारा याद रखना पड़ता है कि हमें कैसे स्ट्रोक्स बनाने, या फिर धीरे धीरे इट बिकम्स अ हैबिट? इट बिकम्स अ हैबिट धीरे धीरे. मैंने बताया ना, जैसे कि वो रिकॉग्नाइज जब करने लगते हैं, जब वो परसीव करने लगते हैं, उनका परसेप्शन जैसे ही चेंज होता है कि अच्छा मैं तो ऐसे लिखता था, अब इसको ऐसे लिखना है, तो दे पिक वेरी फास्ट. और हम सब में ये हैबिट होती है कि वी आर सो फ्लेक्सिबल, हम उस चीज को चेंज कर लेते हैं इजीली, एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली. तो यस, हमारा परसेप्शन चेंज होता है, और हमारे जैसे हमारा परसेप्शन चेंज होता है कि हमें इस तरीके से लिखना है, हमारी राइटिंग चेंज हो जाती है. तो कितना टाइम लगता है, अगर एक कोई मिनिमम टाइम होता है क्या कि इतने टाइम में इम्प्रूव हो जानी चाहिए, या इतने टाइम में मैक्सिमम लोगों की इम्प्रूव हो जाती है? ये मिनिमम एक्चुअली होता है 15 डेज का कोर्स होता है ये, जिसमें मोस्टली 90% किड्स इम्प्रूव कर ही लेते हैं विद इन 10 डेज. बाकी 5 डेज तो हम प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, इम्प्रूवमेंट देखते हैं, और कुछ माइन्यूट से करेक्शन होते हैं तो वो चीज़ पे कवर किए जाते हैं. 15 डेज में नॉर्मली कवर हो जाता है. लेकिन अगर किसी के अंदर जैसे डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी दिखाई देती है किसी भी तरह की, या हैंड मसल्स आपके स्ट्रेंथन नहीं है, तो क्लास थोड़ी सी आगे बढ़ानी पड़ती है फिर.
एंड पेन इन फिंगर्स इज नॉट नॉर्मल वाइल राइटिंग, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा ज़्यादा लिख लेती हूँ तो मेरी मिडिल फिंगर में दर्द होने लगता है। ओके, आप बहुत टाइट पकड़ते हैं पेन को या प्रेशर बहुत ज़्यादा डालते हैं अच्छा, पेपर पे, then it is going to pain, it's ओके painful then. ओके। एंड व्हाट एल्स डज द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग इन्वॉल्व? In the handwriting improvement program, what we do is हम इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया था कि पोस्चर पे वर्क करते हैं, पेंसिल ग्रिप पे वर्क करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जैसे साइंटिफिक टेक्निक्स जो मैं बताती हूँ उसमें लेटर फॉर्मेशन पे वर्क करते हैं। फिर उस जैसे जैसे आपके लेटर्स फॉर्म होते जाते हैं फिर हम उनको प्रॉपर जॉइनिंग सिखाते हैं और कितनी स्पेसिंग रखनी चाहिए, कहाँ किस मार्जिन से शुरू करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ग्राफोलॉजिकली भी प्रूव की गई है कि आपको इस लेटर इन चीज़ों को इस तरह से लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट द स्लैंट्स, हम हमेशा राइट की तरफ जब हम कर्सिव में लिखते हैं स्पेशली हम राइट की तरफ स्लैंट्स बनाए जाते हैं, आप लेफ्ट की तरफ स्लैंट नहीं बनाते हैं। दिस इज नॉट कंसिडर्ड नॉर्मल, सो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट। तो हम ये कोशिश करते हैं कि ग्राफोलॉजिकली भी बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेट डाला जाए लिखने इस और इस पॉजिटिविटी से उनके अंदर थोड़े से जो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो रिलक्टेंस है, जो लर्निंग की तरफ उनकी नेगेटिविटी है, वो थोड़ी चेंज की जा सके। सो यही अप्रोच रहता है मोस्टली अच्छा, प्रोग्राम तो का। आप जैसे हिंदी और इंग्लिश दो राइटिंग इम्प्रूव करवाते हो, तो ये दोनों एक साथ करी जा सकती हैं या वी हैव टू टेक वन लैंग्वेज एट अ टाइम? One language at a time. Yes, it is ओके that ओके। way. I normally prefer अच्छा, that way. मतलब पॉसिबल है अगर कोई करना चाहे, मतलब इट विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर बट मे बी। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास जो बच्चे आते हैं मोस्टली बहुत ही यंग एज में हैं। मैं नहीं चाहती, ऑलरेडी दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रेशर इन द स्कूल। मैं नहीं चाहती कि इनके ऊपर इतना प्रेशर है, क्योंकि मैं अगर लिखवाऊंगी तो एक पेज वो मिनिमम एटलीस्ट एक पेज इंग्लिश का भी लिखना है, फिर एक पेज हिंदी का लिखना है, फिर इनके पास होमवर्क होगा, फिर स्टडीज होगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ बंडल अप ना हो इनके लिए और थोड़ा इजी गोइंग रहे। अदरवाइज अगर हम दोनों साथ में करना चाहें तो की जा सकती है। ओके, यस। की जा सकती है। तो अडल्ट्स को भी हम्म। बेनिफिट हो सकता है क्या हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने से? हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर हम ये सारे ट्रेड्स इम्प्रूव कर सकें और इससे अगर पॉजिटिविटी आती हो और हम करेक्ट फॉर्मेशन सीख सकें और राइटिंग सुधार सकें तो व्हाई नॉट। अच्छा। यस, क्योंकि जब हम हमारे अंदर राइटिंग लिखने का अगर कॉन्फिडेंस आता है तो हम हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, ये सब लिखना, कितनी बार ऐसा मन होता है ना आज कुछ लिखते हैं, तो अगर राइटिंग आपकी अच्छी होती है और आपका मूड अच्छा होता है तो यू फील हाँ, गुड। अगर मतलब आप थकते नहीं हो तो इट इज लिखने से, अबाउट जैसे मेरे साथ क्या होता है यार, ये लिखना है, 4 लाइन लिखनी है, एक पेज लिखना है, फिर लगता है यार इतना सारा कौन लिखेगा, लेट्स टाइप इट या फिर लीव इट। हाँ तो बिल्कुल। मतलब अच्छी हैंड राइटिंग हो। तो हाँ आपका जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी आपका मन करेगा हाँ। लिखने का। एंड इट्स एक्चुअली ये भी कहा जाता है कि जब आप लिखते हैं तो आप अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं, आपकी एंजाइटी, आपके फियर्स रिलीज हाँ। होते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर अच्छा, पहले एडल्ट्स मैं टू। भी डायरी लिखती थी, लेकिन मोस्टली इतना गंदा गंदा लिखा है जो मन में आया लिखते चले गए। नहीं, इट्स अ वेरी गुड हैबिट एक्चुअली। हम्म, मैं भी लिखती थी लेकिन मैं कॉपी करती थी, अच्छा। नॉट अपने थॉट्स। मुझे कोई भी जैसे न्यूज़पेपर में, जैसे संडे टाइम्स में वो हाँ। स्पीकिंग ट्री आता था, तो मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगती थी, आई वाज लिटिल स्पिरिचुअल, तो वो चीज़ें मैं, यस, मैं आई यूज्ड टू कॉपी। एंड अब अभी भी मेरे पास वो ट्रेजर है। एंड मेरी डॉटर है 11 इयर्स की, तो मैं उसको कितनी बार उसको रीड करवाती हूँ, शी फेल्ट वेरी हैप्पी। अभी उसके बर्थडे पे मैंने उसको डायरी दी थी, आई आस्क्ड हर टू यू आल्सो स्टार्ट राइटिंग एंड शी इज फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। नहीं, राइटिंग अच्छा है। आई थिंक मुझे लगता है हाँ, सबको ये हैबिट रखनी रखनी चाहिए चाहिए। ऑब्वियसली। अच्छा, तो जी। क्या हैंड राइटिंग चेंज भी होती है? जैसे अभी बात हो ही रही थी कि अगर आपके डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं तो डिफरेंट स्ट्रोक्स होते हैं, तो वैसे ही एज वी ग्रो हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है, तो वैसे वैसे हैंड राइटिंग भी चेंज होती जाती है। हाँ, तो ये बिल्कुल ये ऑपोजिट सही है। इफेक्ट भी होता है कि हैंड राइटिंग चेंज कर ली तो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी कंपेयर करिएगा राइटिंग जब आप छोटे थे और अभी की हाँ राइटिंग में, बहुत हाँ। डिफरेंस होगा। ये डिफरेंस कैसे आता है? हम इन्फ्लुएंस होते हैं हम्म, आसपास के लोगों से। हमने कितनी बार जैसे कितनी बार राइटिंग में भी इन्फ्लुएंसेस होते हैं और बहुत बार हमारे बिहेवियर में भी इन्फ्लुएंसेस होते होते हैं।
अगर कोई पास वाला आपकी फ्रेंड है, वो जिस लैंग्वेज में बात कर रही है, सपोज वो दिल्ली से है, तो वो जिस जिस टोन में बात करेगी, जिस एक्सेंट में बात करेगी, तो आपको वो महसूस होगा कि आपके अंदर भी वो एक्सेंट आ रहा है धीरे धीरे। तो उसी तरीके से मेरे को लगता है हैंडराइटिंग भी इन्फ्लुएंस होती है आपकी एज के साथ में, आपके मूड के साथ में, और आपके एक्सपीरियंसेस जैसे जैसे जुड़ते जाते हैं आपके साथ, आपकी राइटिंग चेंज होती जाएगी। तो काफ़ी हद तक यस, आपकी मैच्योरिटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें आपकी हैंडराइटिंग में शो होती है, और वो चेंज हो सकती है अगर हम चाहें तो। हाँ, सीरियसली इतना कभी नहीं सोचा। मुझे भी रियलाइज हाँ, होने लगा। बस एक चीज़ मैं ये कहना ज़रूर चाहती थी, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चे जो मेरे पास आते हैं, अ, देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या स्ट्रेस्ड होते हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे जो हाँ, स्ट्रेस्ड हैं, उन बच्चों को जब मैंने स्टडी किया तो मुझे ये लगा, और इनफैक्ट सिर्फ उन्हीं बच्चों को नहीं, मुझे लगा कि ये बच्चे बहुत जल्दी लिखना शुरू कर देते हैं, लाइक एट द हाँ, एज ऑफ 3, मतलब नर्सरी में आपको लिखाना शुरू कर हाँ, देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके ऊपर इतना प्रेशर है, और आप जब इनका होमवर्क देखेंगे, आप इनका राइटिंग पैटर्न जब आप देखेंगे, ये कम से कम 2 से 3 पेजेस ये स्कूल में लिख रहे हैं ये बच्चे, और 2 से 3 पेजेस इनको होमवर्क दिया जा इतने रहा है। छोटे बच्चों को। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, मेरा बेटा है 5 इयर्स का है वो, अभी जूनियर केजी में है। उसको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स में तो होमवर्क मिलते ही हैं, तो 2 पेज तो उसको लिखना ही है। मेरी डॉटर के साथ हम्म, भी यही था। तो आई डोंट नो कि सभी स्कूल में होता है या नहीं होता है, बट आई हैव सीन इन 2 स्कूल्स एटलीस्ट, और मेरे पास जो बच्चे आते हैं, उनका भी मैंने काफ़ी कन्फ्यूजन देखा है। मतलब दे मिक्स वो अ, बेसिक्स को और कर्सिव को मिक्स कर देते हैं, वो केसेस को मिक्स कर हम्म, देते हैं। उनकी लाइंस को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है, इवन आफ्टर राइटिंग फॉर 2 इयर्स, हम्म, 3 इयर्स। तो हम जिस तरह से सब्जेक्ट को डेवलप करते हैं, हम जिस तरह से उनमें बच्चों में इंग्लिश के लिए हिंदी को डेवलप कर रहे हैं, इंग्लिश को डेवलप कर रहे हैं, मैथ्स को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हैंडराइटिंग की जो गाइडलाइंस बच्चों को दी जा रही है, मुझे लगता है कि ये एक तरीके का स्किल है जो बच्चों को कंटिन्यूअसली आपको सिखाना चाहिए इन द स्कूल एज वेल। और इतना प्रेशर एट सच यंग एज इज रियली वेरी टायरिंग फॉर दीज हैंड मसल्स। इतने छोटे छोटे हाथ हैं इन बच्चों के, इनके मसल्स अभी तक डेवलप हो रहे हैं। तो आई रियली फील कि इनके ऊपर अगर आपको वर्क करना ही है, तो आप रिकॉग्निशन पे वर्क करें, लेटर रिकॉग्निशन पे वर्क करें, आप इनके मोटर स्किल्स को डेवलप करने पे वर्क करें। आजकल काफ़ी अवेयरनेस भी है, मोटर स्किल्स डेवलप की भी जा रही है स्कूल्स के अंदर, पर इस लेवल पे नहीं हो रही है कि मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी स्कूल इसमें लैक भी कर रही है। मेरे को यही लगता है कि अगर हम क्योंकि आउट ऑफ इंडिया में या मंटेसरी हम लोग इसमें सिस्टम में देखें, तो उसमें 5-6 इयर्स तक बच्चे को लिखाया नहीं जाता है, उन पे प्रेशर नहीं दिया जाता है, और इतना 6 पेजेस, मतलब 4 to 6 पेजेस अगर बच्चा लिख रहा है एट सच हम्म, यंग एज, तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर लिखने के लिए, हैंड राइटिंग के लिए वो स्ट्रेस आना, उसके लिए वो हैंडराइटिंग के प्रति एंजाइटी फील करना या स्ट्रेस्ड फील हम्म, करना, इमोशनली और फिजिकली टायर्ड फील करना, ये नेचुरल है। तो इस चीज को अगर कब कर हम्म। पाए हम, तो ही मतलब हम बच्चों की कुछ मदद कर सकते हैं। तो तो स्कूल्स या नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस, और साथ में पेरेंट्स को भी। कई पेरेंट्स भी होते हैं ना, उन्हें लगता है अरे ये तो स्कूल जाने लगा, अभी तक लिखना ही नहीं आया है इसको। अरे बच्चे खुश, पेरेंट्स मैंने देखा है वो खुश होते हैं, मेरे बेटा तो ये सब जानता है, हाँ। ये सब लिख लेता है। ठीक है, सब बच्चे अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज पे होते हैं, काफी बच्चे यस। कर लेते हैं, नो डाउट, बट इट इज स्टिल टायरिंग फॉर देम। जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी टायरिंग है, और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सा सिचुएशन हाँ, क्रिएट हो मुझे जाता है। अपना स्कूल टाइम याद है। मेरा भाई जो मुझसे 10 साल छोटा है, और वो ही वेंट टू अ मच बेटर स्कूल, बट हम दोनों के साथ यही इशू था कि वी स्टार्टेड राइटिंग एट 3। राइटिंग मतलब ओके, वी वर टॉट आई थिंक A to Z, 1 to 10, और आ से आहा तक। यस, इतना तो मेरे ख्याल से फर्स्ट में जो नर्सरी हाँ, क्लास बोला जाता था पहले, उसी में सिखा देते थे। और हम्म। अभी तो फिर भी। अभी भी हो रहा है, काफी स्कूल्स में अभी भी हो रहा है। आप मैंने मतलब मेरा बेटा हम्म, 2.5 साल का था, मैंने मैंने आई आई लिटरली प्लीड देम कि मुझे इसको नर्सरी हम्म, में नहीं डालना है, क्योंकि नर्सरी में जाते ही लिखना हाँ, शुरू कर देगा। आई वॉन्टेड हिम टू जस्ट अंडरस्टैंड स्कूल सिस्टम, समझे क्या पढ़ाया जाएगा इसको, ये हाँ, समझे कि इसको रोज सुबह उठना है, वो अपना रूटीन हाँ, समझे पहले।
जब टीचर्स ने 1 महीना उन्होंने नर्सरी में एडमिशन कर दिया, फिर 1 महीने बाद उनको रियलाइज हुआ कि ही इज नॉट एबल टू राइट, तो आई टोल्ड हिम आई डोंट वांट टू प्रेशराइज हिम, आई एम ओके इफ ही इज नॉट राइटिंग, तो दे शिफ्टेड हिम टू प्ले ग्रुप देन। आई वाज रियली वेरी मतलब ये पहली सब लोग ये बोल रहे हैं पहली माँ होगी जो अपने बच्चे को नर्सरी से प्ले ग्रुप में डाल रही है। सब ये बोलते हैं कि प्ले ग्रुप से नर्सरी में डालो मेरे बच्चों हाँ को। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मेरे भाई का जो फर्स्ट क्लास था इट वाज कॉल्ड प्ले ग्रुप, उसका नाम प्ले ग्रुप था, बट ही कुड राइट दिस मच। मेरा जो फर्स्ट था उसका नाम था नर्सरी एंड आई कुड आल्सो राइट दिस मच। सी दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। एक्चुअली मेरे टाइम पे तो मुझे इतना याद नहीं कि मैंने कभी पढ़ाई भी करी होगी, इतना लिखा होगा जितना मेरे बच्चे हाँ लिखते ये तो है हैं। यार, ये तो मतलब कॉमन हो गया है। सो नम्रता, व्हाट्स द best way to connect with you if someone wants to get in touch with you to improve their kids' handwriting? Okay, I have an Instagram handle. I'm on Facebook. तो आपका Instagram handle क्या है? Just Right with Namrita. Facebook page just right. अच्छा, just right. Yes. Okay. Okay. So do you help adults also or just kids for now? I help both. I've come across many adults also. Actually क्या होता है कितनी बार उनको बायोडेटास लिखने होते हैं, so मतलब उनके CV not बायोडेटास, उनको जब CV लिखनी होती है उनकी, तो वो काफ़ी कंपनीज जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैंड रिटन CVs कॉल करती हैं। तो फॉर दैट रीज़न काफ़ी बार होता है ऐसा कि एडल्ट्स को उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करनी होती है एंड दे वांट टू राइट इन अ बेटर हैंड राइटिंग, सो दे कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट रीज़न टू। Now this is a new point कि वो CV चाहते हैं handwriting में. Handwritten, Did yes. analyze their handwriting? Right, to analyze their handwriting. वो ये देखना चाहते हैं कि कितनी लीडरशिप क्वालिटी है इनमें, कितने पॉजिटिव ट्रेट्स हैं इनमें। तो yes, and this is done by big organizations. Okay. तो ये भी एक नए ज्ञान की बात पता चली हमें आज। Okay. Okay, Namrata, thank you so much for joining Little Fixes and sharing whatever you know about handwriting. Thank you so much, Maitri, for giving me this opportunity to share my feelings, my thoughts about handwriting, my love for handwriting. I hope other moms को भी कुछ help मिली होगी। मेरे को भी लगता है कि it's a very good platform and thank you for giving me this platform. तो मेरी हैंडराइटिंग चाहे जैसी भी हो, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मेरी डॉटर अदाया की जरूर ब्यूटीफुल हो। नम्रता के सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है और शो नोट्स में भी। Find Little Fixes on Instagram and Facebook as @LittleFixesPodcast. Follow and subscribe if you enjoy our episodes. Talk to you soon. Bye.